آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 8 سال۔ اچھا، جب آپ نے کلام پاک کا حفظ مکمل کیا تھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال 11 مہینہ 8 دن۔ 7 سال 11 مہینے 8 دن، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ 7 سال 11 مہینے 8 دن۔ اب اندازہ لگائیے کتنی چھوٹی عمر ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ ان ایام میں بچے مکتب کا چکر لگاتے ہیں، لیکن عزیزم مشاہد بابو نے اس عمر میں مکمل کلام پاک کا حفظ کیا ہے۔ اچھا بتائیے کتنے دن لگے آپ کو حفظ مکمل کرنے میں؟ 7 ماہ 14 دن۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، 7 ماہ 14 دن آپ کو لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ دولت عطا فرمائی ہے جس دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کے ہر چیز کو تولی جا سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، لیکن اس دولت کو کوئی خرید نہیں سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ماتحت رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو میں جتنا شکر ادا کروں اور چرچا کروں اتنا میرے لیے کم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز اسٹوڈیو اردو میں خیر مقدم ہے۔ آپ کو میں جو خبر اور جو منظر نیوز اسٹوڈیو اردو کے پردے پر دکھا رہا ہوں اس سے یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس خبر کا تعلق اس کتاب سے ہے جس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو کتاب لا ریب ہے، اور اس کتاب کا ایک زندہ اور تازہ اعجاز اور اعزاز میں آپ کو ابھی براہ راست دکھانے والا ہوں۔ میرے دائیں طرف جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عمر آپ دیکھیں گے تو عمر کے حساب سے آپ کو لگے گا چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس کے قد و قامت اور عمر کو دیکھ کر کے آپ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بچے نے اپنے والدین کی دعاؤں اور تربیت اور اساتذہ کی شب و روز کاوشوں سے محنتوں سے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو ہم سب کے لیے قابل فخر ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بچہ جس کی عمر محض 7 سال 11 مہینہ اور 8 دن، 7 سال 11 مہینہ 8 دن، یہ عمر عام طور پر بچوں کے کھیلنے کودنے کا ہوتا ہے۔ یہ بچے ان ایام میں مکتب کا چکر لگاتے ہیں، لیکن میرے دائیں طرف جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ عزیزم مشاہد رضا، اس نے مکمل کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ واقعی یہ خبر اتنی دل کو خوش کرنے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کو اور ان تمام مسلم مخالف طاقتوں کو ایک جواب پہنچنے والا ہے جو اس کتاب کے نیست و نابود، اس کتاب کے مٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یقیناً یہ کلام پاک لا ریب ہے۔ اللہ عز و جل اس کلام پاک کو انسانوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ جس کتاب کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں، اس کتاب کو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس عمر میں اپنے سینے میں مکمل کلام پاک کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آئیے ہم اس بچے سے بات کرتے ہیں، اور ایک بات میں اور بتانا چاہوں آپ کو، اس کی عمر تو 7 سال 11 مہینہ 8 دن ہے، اور اس نے جو کلام پاک کو مکمل کیا ہے یہ محض 7 مہینے اور 14 دن، 7 مہینے 14 دن میں اس بچے نے مکمل کلام پاک کو سینے میں حفظ کیا ہے، مکمل کیا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں بابو سے، پھر ان کے والد گرامی سے بات کریں گے، اور آپ کو اس سے ہم کو جو اس میں رغبت ملے گی تو ترغیب ملے گی، اور اس سے ہمیں کوئی ضرور ایک لہجہ ملے گا، ایک اندازہ ملے گا جس سے ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ بابو آپ کا نام بتائیے پہلے۔ محمد مشاہد رضا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 8 سال۔ اچھا، جب آپ نے کلام پاک کا حفظ مکمل کیا تھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال 11 مہینہ 8 دن۔ 7 سال 11 مہینے 8 دن، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ 7 سال 11 مہینے 8 دن۔ اب اندازہ لگائیے کتنی چھوٹی عمر ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ ان ایام میں بچے مکتب کا چکر لگاتے ہیں، لیکن عزیزم مشاہد بابو نے اس عمر میں مکمل کلام پاک کا حفظ کیا ہے۔ اچھا بتائیے
कितने दिन लगे आपको हिफ्ज़ मुकम्मल करने में? 7 माह 14 दिन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 7 माह 14 दिन आपको लगे। अच्छा, आपके वालिद गिरामी का नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद मुमताज़ आलम रज़वी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जोधपुर यानी राजस्थान, अभी आप रहने वाले घर कहाँ आपका? काजी बस्ती, अच्छा, आपके मदरसे का नाम क्या है? फैज़ान चिश्तिया सुलेमानिया, फैज़ान चिश्तिया सुलेमानिया। आपके उस्ताद का नाम? हाफिज असलम। हाफिज़ असलम। अच्छा बाबू बताइए, आपके मदरसे में बहुत से उस्ताद हैं, आपने मेहनत से पढ़ाई की है, तो कहीं से हमको आप पढ़ के सुनाइए, कहीं से भी पढ़ के सुनाइए। चौथा पारा ही पढ़ लो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। कुल्लु त्तआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात। قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين। सुनाइए 15वां पारा सुनाइए सूरह इसरा। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, पढ़ने का अंदाज़ काफ़ी निराला है। मुशाहिद बाबू ने जिस अंदाज़ में ये अभी कलाम पाक हमको सुनाया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे पर खुदावंद ताला की खुसूसी इनायत है। अल्लाह ने इस बच्चे को ख़ास सलाहियत वदियत फरमाई है, जिस बिना पर इस बच्चे ने महज 7 साल की उम्र में, 7 साल 11 महीना, तकरीबन 8 साल की उम्र में इस बच्चे ने मुकम्मल कलाम पाक को अपने सीने में महफूज किया है। सबसे पहले हम इस बच्चे के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करेंगे, इनके माँ बाप को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करेंगे कि जिनके बच्चों ने, यूँ तो कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिनके बच्चे कामयाबियां हासिल करते हैं, वो दुनियावी तौर पर असली तालीम में कोई डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ऐसे माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद है। लेकिन इनके वालिद गिरामी मौलाना मुमताज़ साहब रज़वी ने जो कारनामा अंजाम दिया अपने बेटे के ज़रिए, ये उनको हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए बात करते हैं इनके वालिद गिरामी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी खुशी है आपको एक बाप होने की हैसियत से कि आपके बेटे ने इस कम उम्र में कलाम पाक को हिफ्ज़ किया है? मुझे उतनी खुशी है जिस खुशी को मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। रब कदीर के जितने भी शुक्र अदा करूँ मैं उतना ही कम है, क्योंकि रब तबारक व तआला ने मुझे वो दौलत अता फरमाई है जिस दौलत की कोई कीमत नहीं है। दुनिया के हर चीज़ को तोली जा सकती है, ख़रीदी जा सकती है, लेकिन इस दौलत को कोई ख़रीद नहीं सकते हैं। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के मातिहत, रब तबारक व तआला की नेमत को मैं जितना शुक्र अदा करूँ और चर्चा करूँ उतना मेरे लिए कम है। अच्छा, आपके अजीज़म बेटे ने जो कलाम पाक को हिफ्ज़ किया है, यकीनन इसमें इसकी भी मेहनत शामिल है और कहीं ना इनके असतिज़ा की भी मेहनत शामिल है, और उससे बेहतर आपकी और इनके मुशाहिद की वालदा करीमा की भी मेहनत शामिल है। तो आपने बच्चे के पीछे किस तरह मेहनत की जो आपका बच्चा इस तरह कामयाबी हासिल की है? मैं और मुशाहिद हाफिज़ मुशाहिद रज़ा के वालदा, हम लोग जब से लॉकडाउन लगा था तब से हम दोनों इनके पीछे लगे हुए थे कि जब दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो आज के माहौल ये है कि दुनियावी तालीम हासिल करने के बावजूद कहीं नौकरी वगैरह के चांस नहीं है। दुनियावी हासिल करने के बावजूद भी हमें नौकरी प्राइवेट ही करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हमारे बच्चे हमारे पिछले और अगले दोनों के लिए कुछ ऐसी मिसालें बन जाए कि इनको देख करके अगले वाले भी कुछ नसीहत ले और अपने आप को इस दीन के लिए कायम कर सके। मैं यही सोच करके बच्चों के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे इलाके के जितने भी थे ज़्यादातर हजरात घर आ चुके थे। हम कुछ ही हजरात ऐसे बचे हुए थे जो जोधपुर शहर में रह रहे थे। अच्छा, तो आप जोधपुर शहर में आपका ज़रिए माश क्या है, वहाँ क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं जोधपुर शहर में मस्जिद में रहता हूँ इमाम साहब हैं? जी, और मदरसे में पढ़ाता हूँ। साथ में मस्जिद मदरसा दोनों है। शुरू में मैंने बच्चों को घर में ही पढ़ाया, 12वां पारा तक तो मैं घर में ही हिफ्ज़ कराया। उसके बाद मैंने दावत इस्लामी के मदरसे में सुपुर्द किया। जो मदरसा सुबह 8 बजे मैं मदरसा ले जाके छोड़ता हूँ, 8 बजे से लेकर के 4:30 बजे फिर वापस मदरसा लेके आता हूँ। मेरे मदरसे में पढ़ा करके फिर मैं बच्चों को लेने जाता हूँ। मदरसा में बच्चे रहते हैं और वहाँ से आने के बाद फिर बच्चे दिन में पूरे दिन वहाँ रह करके क्या पढ़ा, उस्ताद को क्या सुनाया, ये सारी चीज़ फिर उनके वालदा घर में सुनती थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा।
देखिए यकीनन ये अजीज़ा मुशाहिद और इनके बड़े भाई, इनसे भी हम बात करेंगे। ये जो आज कामयाबी हासिल की हैं तो इनके वालिदैन करीमैन का भी काफ़ी इसमें मेहनत शामिल रही है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद मुशर्रफ रज़ा। मोहम्मद मुशर्रफ रज़ा, आपने कै पारा हिफ्ज़ किया है? 18 पारा। अच्छा, आपके छोटे भाई मुशाहिद, आप लोग कै साल के छोटे बड़े हैं? 3 साल। 3 साल के। तो आपको भी मुकम्मल हाफिज़ बनना है जी। तो आपके छोटे भाई ने आपसे पहले, आपके बड़े हैं हकीकत में, उम्र में छोटे हैं, आपसे पहले वो हिफ्ज़ कर लिए, तो बड़े भाई होने की वजह से आपको खुशी है कि नहीं? जी बताइए, बोलिए। बहुत खुशी है। अब क्या कहेंगे छोटे भाई के लिए आप? छोटे भाई के लिए आप अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे? और जी इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे इनके वालिद गिरामी से और साथ साथ अजीज़ा मुशाहिद और मुशर्रफ साहिबान से। वाकई ये ख़बर मैं आपको दिखा करके, ये मंज़र आप तक पहुँचा करके मैं खुद फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कलाम पाक खुदा अज़्ज़ा वजल की ऐसी लाजवाल किताब है और हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा कलाम पाक को हिफ्ज़ कर ले। मौलाना मुमताज़ आलम रज़वी साहब ने को अल्लाह ने ये खुशबख्ती बख्शी है कि उनके 2 बेटे हाफिज़ कुरान बन गए हैं तकरीबन। एक तो ऐसे हाफिज़ कुरान बने हैं जिनका जवाब ही नहीं, और सब इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। हम तहे दिल से इनके लिए दुआ करते हैं। और नाज़रीन, फिर हम बात करेंगे इनके जो नाना वगैरह हैं और घर के दीगर अफराद हैं और मोहल्ले के जो दीगर लोग हैं, वो मोहल्ले के लोग, आसपास के जो लोग हैं, उलमाए किराम हैं, इन दोनों बच्चों की कामयाबी से कितनी खुश हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये 7-8 साल के बच्चे पूरे कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेना, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैं राजस्थान प्रोग्राम गया था जोधपुर में, तो मैं वहाँ रह के देखा कि इनके वालिद साहब इनको ले जाना, छोड़ना, लाना, काफ़ी इनके वालिद साहब की भी बहुत मेहनत रही है इनके साथ में। और खुशी की बात यह है कि जब बच्चे मुकम्मल कर लिए कुरान शरीफ, तो मुझे फ़ोन किए मौलाना मुमताज़ साहब, उनके वालिद साहब फ़ोन किए, और मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था रसिया के सहज़बी पर। तो उस वक्त मुफ्ती फ़िरोज़ साहब और मौलाना शम्स तबरेज़ साहब का क़िबला इन लोग सब बैठे थे। तो जैसे मैं इन लोग से इसकी बात कर रहा था, उन लोग से मुझसे पूछे कि किसका फ़ोन है। मैं बोला ऐसी बात है कि हमारे गांव के मौलाना मुमताज़ साहब है, काजी बस्ती के रहने वाले हैं, उनके लड़के 8 साल भी उम्र नहीं हुई है, वो हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिए 7 महीने 22 दिन में। तो उन लोग भी दुआओं से नवाजे कि अल्लाह उनको सलामत रखे। बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अज़ीज़म हाफिज़ मुशाहिद रज़ा, इन्होंने इस छोटी सी उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये हमारे कौम के लिए एक रहनुमाई है। मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे के ज़रिए हमारे कौम को एक मैसेज दिया जाए, और इसी गर्ज से मैंने भी और मौलाना कलीमुल्लाह चिश्ती ने भी ये किया, प्रोग्राम बनाया कि इसके मीडिया के ज़रिए इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों तक पहुँचे, ये ख़बर पहुँचे और लोग भी अपने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। जब पहली बार ऐसे तो मेरे मुलाकात होती रहती थी मौलाना मुमताज़ साहब से, मगर पहली बार जब इस बच्चे को देखा और सुना कि ये हाफिज़ कुरान बने, उसी वक्त से मैं मौलाना मुमताज़ से ज़िक्र कर रहा था कि बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए तो इसको स्टेज लेवल पे जाकर ये करेंगे, इश्तिहार करेंगे लोगों के सामने, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, लोगों की हौसला अफजाई हो। और इसी गर्ज से एक मरतबा जब हम लोगों ने यहाँ पर मुहर्रम का या कोई ऐसा प्रोग्राम किया, तो इन दोनों बच्चों को बिल्कुल सामने रखे स्टेज पे, और सामने रखने के बाद इन दोनों से नात भी पढ़वाए थे, और माशाल्लाह दोनों बच्चे मिलकर बहुत अच्छे नात भी पढ़े थे, और लोगों ने दाद व तहसीन भी दिया, और लोग देखने के बाद अपने अपने बच्चों को भी नात पढ़ाने लगे कि ये उम्र में ये बच्चे इतने कामयाब हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी कामयाब हो सकते थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनके बड़े पापा हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं मौलाना मुमताज़ साहब। जब बच्चे हमारे हाफिज़ कुरान हो गया तो पूरा हमारे घर वाले बहुत खुशी मनाए, मेरे बच्चे से लेकर बहन भाई जितने भी हैं, हम सबको ही बहुत खुशी मनाए, और इस बच्चे के लिए सबको दुआ भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाबी हासिल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि मेरे दोनों नाती जो हाफिज़ कुरान बना है, और मुझे बहुत फ़ख्र है, दुआ भी करते हैं, और ऐसे सब की बच्चों हाफिज़ कुरान बने और सब कोई कामयाब हो जाए। बस इसी तरह की दीनी, समाजी, अदबी खबरों की वाक़फ़ियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।